जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग कौशिक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पर। आइए आज हम सभी एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर डिस्कस करें। इस विषय का नाम है वेस्ट एशिया में चल रही क्राइसिस पर और यूएस ईरान के वॉर की वजह से इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इंडिया पर अभी तक उसका क्या क्या असर हुआ है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि एलपीजी का क्राइसिस हो रहा है, क्या लॉकडाउन जैसा सिचुएशन दोबारा आने वाला है। आइए हम एक एक फैक्ट को इतने डिटेल में एनालाइज करें कि हमारा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो जाए समझने के लिए कि क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और क्या फ्यूचर रियलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यूएस ईरान वॉर से। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो 28 फरवरी को ओमान में यूएस के डिप्लोमेट्स और ईरान के डिप्लोमेट्स दोनों के बीच में मीडिएशन हुआ था, जिसमें ईरान ने क्लियर किया था कि ईरान को अभी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ईरान न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। ये चीज़ क्लियर स्टेटमेंट दी गई थी और इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, एटलीस्ट इन द प्रेजेंट स्टेट। Envoys from the United States and Iran have begun face-to-face talks in Oman in an effort to avert the threat of another conflict. It follows numerous threats by Donald Trump and a massive US build-up in the Gulf. Iran has insisted the talks will only address the nuclear issue and not US demands to discuss Iran's support for other armed groups in the region. और इस चीज पर दोनों के बीच में मीडिएशन भी हो गया था, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, यूएस और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर मिसाइल्स दागते हैं, दोनों मिलकर ईरान पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो जाती है। We have just received confirmation from Iranian state TV that the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is indeed dead. You might remember a few hours earlier that President Trump had put his post on Truth Social saying that the supreme leader had died in the military operation led by the US and Israel. In fact, a bit earlier in the day, Israeli leaders had said they had seen photo confirmation of the supreme leader's death. Now we have it confirmed from Iranian state TV. The Ayatollah was the supreme leader of Iran since 1989. He was one of the longest serving heads of state in the world. So this confirmation, of course, from state TV in Iran, very significant. There is often a lot of focus, of course, in the West on the Iranian president, but it really is the supreme leader who pulls the strings. He was an extremely dominant figure in Iran, dominating every public space. He was only the second supreme leader in Iran since the Islamic Revolution in 1979. खामनेई की मौत हो जाती है और जिसकी वजह से ईरान में जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर या ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा टेंशन की या अफरा तफरी का माहौल देखने मिलता है। तो इसके बाद फिर ईरान इसके बदले में यूएस के जितने मिलिट्री बेसिस है, यूएई में, कतर में, बहरीन में, सऊदी अरब में, उन सब मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है कॉन्स्टेंटली। और फिर इन सीरीज ऑफ अटैक्स में ईरान के स्कूल्स में अटैक होता है, जिसमें 175 से ज़्यादा चिल्ड्रंस डेथ कर गए और ईरान भी बदले में रिटेलिएशन करता है। 9 U.S. military sites hit in just 48 hours. New satellite images show the extent of the damage after Iranian strikes across the Gulf. This map shows how close these facilities are to Iran, much closer than Israel, which has often been the clerical regime's primary target. The proximity gives Iran's missiles and drones a better chance of hitting their targets. This is the port of Shaiba, where just after 9 a.m. on Sunday morning, an Iranian strike set a makeshift U.S. operations center ablaze. 6 American service members were killed in the attack. You can see smoke rising from the fire. A blown-out 3-wide trailer blackened on the inside. There are a few signs of fortification. In Bahrain, a drone flies into the base that hosts the U.S. Navy's 5th Fleet, one of the largest American naval formations in the world. It looks alarmingly defenseless. The drone hits one satellite communications terminal, but the scale of destruction is much more obvious here. Warehouses and other buildings damaged, and another satellite communication terminal destroyed in a separate attack to the one seen in the video.
Multi-billion-dollar air defense systems shot most of Iran's missiles and drones out of the sky, but the ones that got through were enough to puncture the veil of security. The aggressors have also targeted a school in the city of Minab, Hormozgan province, killing more than 100 children. The number of innocent civilians continues to rise. This is not only an act of aggression, it is a war crime. लेकिन अगर हम इसे क्लियरली समझे तो वॉर सिर्फ एक साइड से नहीं होता है या एक साइड के एजिटेशन से नहीं होता है। अगर हम इसकी लॉन्ग हिस्ट्री देखें तो बहुत लंबे टाइम से ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी इजराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत भरे या जहरीले स्टेटमेंट्स दिए थे। जैसे कहा था कि ये ज्यूज आर द रेस ऑफ कैंसर, यहूदियों को कैंसर का रेस कहा था, यहूदियों को के बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलते थे। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स भी लंबे समय से वॉर को फ्यूल करने का कारण बने थे। तो ये हो गया एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एक हिस्टोरिकल एनालिसिस जो था यूएस ईरान वॉर का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस तरह के अटैक्स का जस्टिफिकेशन बार बार यूएसए देता है कि हम उस कंट्री का रिजीम चेंज करना चाहते हैं, उस कंट्री को रेडिकलिज्म से हटाना चाहते हैं। लेकिन एक हम सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से अगर हम देखते आए, चाहे इराक का एग्जाम्पल देख लें, चाहे सीरिया का एग्जाम्पल देख लें, चाहे हम ये अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लें, चाहे अभी प्रेजेंट में ईरान का एग्जाम्पल देख लें, जहाँ पर भी यूएस ने अटैक्स किया है या इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है, वहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हटी है वो कोई लिबरल या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनी है, वो और ज़्यादा रेडिकल ही गवर्नमेंट बनी है। और सेम चीज़ ईरान में भी हुआ। जब यूएस की गवर्नमेंट ने बोला था कि ईरान में हम ये खामनेई की गवर्नमेंट हटाने के बाद एक लिबरल और एक सेक्युलर गवर्नमेंट लाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जगह ले ली और ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रेडिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाली गवर्नमेंट थी, जो कि जिनका अप्रोच खामनेई गवर्नमेंट से भी रेडिकल और स्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद ये हिपोक्रेसी सामने आती है डोनाल्ड ट्रंप की, यूएस प्रेसिडेंट की। इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि नहीं, हमारा पर्पस तो ईरान में गवर्नमेंट हटाने से है, ईरान की गवर्नमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं हमें तो बस उन्हें न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है ताकि वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी आती रहे। यही हिपोक्रिटिकल स्टैंड रहा हमेशा से यूएसए का। पहले तो देशों को डिस्टेबलाइज कर देते और उसके बाद वो बोलते नहीं, हमें वहाँ की गवर्नमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम एक इम्पॉर्टेंट मैटर को एनालाइज करें तो इस तरह की सिचुएशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ये रेज किए जाते हैं कि जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये संस्थाएं कहाँ गायब हो जाती हैं। तो बात करता हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जो 2002 के रोम स्टैट्यूट के तहत जिसे बनाया गया था, उसने बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट सब्सटेंटिव एविडेंस पाए गए हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर क्राइम्स किए हैं और वॉर क्राइम्स के तहत बहुत इनोसेंट लोगों की जान ली है इजरायली गवर्नमेंट ने, और बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इनिशिएट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यूएस या इजराइल जैसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स बिल्कुल सीरियस नहीं लेती, या फिर उनके ट्रायल्स को कोई भी सीरियसनेस नहीं लिया जाता, या कभी भी यूएस या इजराइल अपने डिप्लोमेट्स कभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं भेजती कि उसको इतना सीरियसनेस या इतना वेटेज नहीं देती कि उनके हियरिंग्स को या उनके ट्रायल्स को सीरियसली लिया जाए। इसलिए बात एंड में वहीं पर आ जाती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या यूएन का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर ऑलमोस्ट जीरो है। ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पर्पस के लिए रह गई है और ये सिर्फ एक लिटरेचर पर्पस के लिए रह गई, बाकी इनका ग्राउंड लेवल पे जीरो इम्प्लीकेशन है। I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office,
that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes: starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza pursuant to a state policy. फिर उसके बाद बात कहें तो इतने ज़्यादा स्ट्राइक्स के बाद जब 175 बच्चे मर गए ईरान के, तो ईरान की गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रूट है वो ब्लॉक कर देगी सभी कंट्रीज़ के वेसल्स के लिए, सभी शिप्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सप्लाई है या एनर्जी इंपोर्ट्स है वो उसी रूट के थ्रू जाता है, जो कि कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ पैसिफिक से लेकर मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग रूट है और उसे ब्लॉक करने की बात की गई है। तो एनर्जी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण बनते दिख रहा है। This is the Strait of Hormuz, Iran's most important leverage in this ongoing war. But after February 28th, when the US and Israel attacked Iran, the regime shut off this route. By all accounts, the US did not see this coming. Donald Trump's advisors misjudged Iran's capabilities along the strait. But here's the most crucial question. How is Iran blocking the Strait of Hormuz? First, the attack boats and the sea drones. These are designed to swarm enemy warships and sneak upon commercial ships. Beneath the waves, Iran also has midget submarines. The Ghadar can disappear even in the shallow waters of the Strait of Hormuz. They can hunt container ships and evade prowling American warplanes. Which brings us to another potent threat. Iran is said to have between 5,000 and 6,000 naval mines. These are deployed in water and explodes upon contact usually. फिर उसके बाद हम देखें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ऑटोमेशन और यूज़ ऑफ एआई इन मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में हम समझते हैं। तो अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था एंथ्रोपिक के क्लॉड के चैटबॉट और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में, जिसमें यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्लॉड चैटबॉट को यूज़ करता था अपने वेरियस डिसीजन मेकिंग और वेरियस वर्क रिलेटेड पर्पसेस के लिए। लेकिन एंथ्रोपिक ने अपने चैटबॉट पर 2 स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन डाल के रखी हैं कि अपने यूज़र्स का पर्सनल डेटा शेयर नहीं करेंगी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ, और दूसरी चीज़ कि ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग अलाउ नहीं करेगी। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंटली चाहिए था, ताकि जो बहुत सारे वॉर से रिलेटेड ऑटोमेटेड डिसीजन लेने हो, या फिर जो मिसाइल फायरिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने हो, या फिर ये लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करना हो, ये सब में काम आ सके। लेकिन एंथ्रोपिक ने इस चीज़ को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया यूएस गवर्नमेंट और एंथ्रोपिक के बीच में। और यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को बोला कि ये एक लेफ्ट लीनिंग कंपनी है, ये एक लेफ्ट लिबरल कंपनी है, इसलिए यूजर्स इसे ज़्यादा यूज़ ना करें। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया था यूएस की गवर्नमेंट ने, जब एंथ्रोपिक ये यूएस की गवर्नमेंट की मोनोपोली या उनकी रोग बिहेवियर के अगेंस्ट सरेंडर करने को मना कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओपनएआई के सीईओ के सैम ऑल्टमैन ने कहा कि जो चीज़ें एंथ्रोपिक मना कर रहा है वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें चैट जीपीटी या ओपनएआई देने को तैयार है। और उसके बाद यूएस में बहुत ज़्यादा मास प्रोटेस्ट हुआ और चैट जीपीटी को डिलीट करने कहा गया, क्योंकि जब डोमेस्टिक सर्विलेंस होने लगेगा, जब पर्सनल डेटा शेयर किया जाएगा, तो ये कितना ज़्यादा फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए और जो वॉर का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसे कितना ज़्यादा खतरा होगा, इसके हम स्केल को या इस मास डिस्ट्रक्शन के स्केल को हम इस नज़रिए से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव पर। हमारे इंडिया में 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक कहा जाता है कि हम इजराइल का पूरी तरह से सपोर्ट क्यों नहीं करते, एक पर्सपेक्टिव कहता है कि हम पूरी तरह से
ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो पहली बात अगर हम समझें तो इसराइल ने रिसेंटली जो हेक्सागोनल अलायंस अनाउंस किया था तो काउंटर दी टेररिज्म, हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी क्लियरली कहा था कि जब बात टेररिज्म की होगी तो इंडिया क्लियरली स्टैंड्स विद इसराइल। फिर उसके बाद हम ईरान की बात करें तो ईरान से हमारा बायलैटरल ट्रेड का अगर हम वॉल्यूम देखें तो $1.4 बिलियन का ट्रेड है हमारा। और अगर चाबहार पोर्ट का ट्रेड देखें तो लगभग उसका भी वॉल्यूम लगभग इतना ही है। तो जब हमारी ईरान से भी इतना ज़्यादा बायलैटरल संबंध अगर हमारे इतने अच्छे हैं तो हम पूरी तरह से ईरान के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ हम पूरी तरह से नहीं हो सकते। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी हमारा डोमेस्टिक फैक्टर था तो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर पर एक फोर्सफुल स्टांस या हमारे सिटीजन्स को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की है बार बार, दोनों ईरान के भी अथॉरिटीज़ ने और इसराइल के भी अथॉरिटीज़ ने। तो पहली बात हम ईरान के अथॉरिटीज़ पर आते हैं। जब हमारे देश में आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था तो ये हमारा इंटरनल मैटर था और ये हमारे सिटीजन्स का इंटरनल मैटर है, लेकिन ईरान गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती इंटरफेयर करके कहा था कि ये मोदी गवर्नमेंट का ये स्टेप एंटी मुस्लिम है। इंडियन गवर्नमेंट आजकल बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम हो रही है। ज़बरदस्ती हमारे इंटरनल मूवमेंट में एजिटेशन या इंटरनल सप्रेशन लाने की कोशिश किया गया था ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा। Iran's supreme leader has leveled some serious allegations against India. We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza, India, or any other place. Gaza, where 40,000 Muslims have been killed by Israel. Myanmar, where 700,000 Muslims were expelled, and then India in the same bracket. It's clearly a political statement, but New Delhi has hit back. Countries commenting on minorities are advised to look at their own record before making any observations about others. And it's not a first. In 2017, he called Kashmir an oppressed nation. In 2019, he criticized India's decision to cancel Kashmir's special status. And in 2020, he said Muslims are being massacred in India. Each time, न्यू दिल्ली हिट बैक। फिर उसके बाद हम बात करें सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उस टाइम भी सेम कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है मुस्लिम्स पर, इंडिया में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर। ये चीज़ ईरानियन गवर्नमेंट ने बार बार हमारे इंटरनल मैटर्स पर नैरेटिव सेट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ये एंटी मुस्लिम स्टांस ले रही है। फिर बात करें इसराइल की तो 2008 के मुंबई अटैक्स में जो लश्कर तैयबा जिसने मेन जिम्मेदारी ली थी मुंबई अटैक्स करवाने की, उसको रिकॉग्नाइज करने में इसराइल को 15 साल लग गए कि लश्कर तैयबा एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसराइल का इस मैटर पर स्टांस न्यूट्रल था। जब लश्कर तैयबा उन्हें अफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो क्यों लश्कर तैयबा पर स्टांस ले। तो ये कहीं ना कहीं इसराइल का भी एक गलत स्टांस था, क्योंकि जब लश्कर तैयबा ने अटैक किया था मुंबई पर तो उन्होंने चुन कर ज्यूस पर अटैक किया था और नरीमन पॉइंट पर ज्यूस के कल्चरल प्लेसेस और ये बिजनेस लोकेशंस पर अटैक किया गया था। उसके बाद भी ज्यू कम्युनिटी ने ये चीज़ उसके बाद भी इसराइल को एक्सेप्ट करने में ये चीज़ 15 साल लग गए, क्योंकि ये अटैक इसराइल पर नहीं हुआ था। तो इसलिए इस तरह का जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हुए इंडिया का न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों देशों ने हमारा फ़ायदा भी दिया है और दोनों देशों ने हमें इंटरनल मैटर पर हमें कभी ना कभी चोट भी पहुंचाई है, एक हम अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझे इस चीज़ को। तो बात करता हूँ एनर्जी क्राइसिस की। तो एनर्जी क्राइसिस की बात करें
तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफ ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एनर्जी क्राइसिस के मुद्दे को एड्रेस किए थे। तो उस इशू को एड्रेस करते हुए कहा गया था कि 10 से 12 दिन का एलपीजी का रिजर्व अभी भारत में अवेलेबल है और अभी एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम इंटरनेशनल अथॉरिटीज से और कंटिन्यूसली हम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पे हम कांस्टेंट टच में हैं, ताकि हमारी शिप्स को जल्दी से जल्दी पैसेज और जल्दी से जल्दी अर्ली एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े फ्लॉज क्या थे। सबसे बड़ा फ्लॉ और सबसे बड़ा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या था? सबसे बड़ा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ही बोला गया था कि देयर विल बी नो क्वेश्चंस एंटरटेन्ड। मतलब ये क्या मजाक है, ये किस तरह का खेल किया जा रहा है इस देश के नागरिकों के साथ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई सवाल नहीं एंटरटेन किए जाएंगे। मतलब आप इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट हो के आप ये प्रेस के सवाल नहीं एंटरटेन कर सकते हो, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे ही क्यों? Good evening, friends. I extend a warm welcome to the members of the media and to the senior officers from the Government of India who are present here today for this inter-ministerial briefing at the National Media Center. Today's briefing has been organized to provide an update from the relevant ministries on different aspects and steps being taken by Government of India. We have with us senior officers from Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Shipping, Ministry of External Affairs, and Ministry of Information and Broadcasting. Please note that we will not take questions in today's briefing. फिर उसके बाद बात करें ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा था कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड की वजह से एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी बराबर लोकेशंस पर की जा रही है। अब मैं बताता हूँ हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स किस तरह एलपीजी मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगी कि स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है और कल के डाटा के हिसाब से लगभग 90% बुकिंग्स हैव बीन ऑनलाइन। एक और इनिशिएटिव जो हम इस वक्त पुश करना चाह रहे हैं वो है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। सो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड्स के नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है। जो पहले 53% हुआ करता था, कल वो 72% था। कमर्शियल एलपीजी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लगभग सभी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है एंड द रिलीज ऑर्डर्स, द एलोकेशन ऑर्डर्स हैव आल्सो बीन इशूड बाय देम। से टेक्निकल भाषा यूज करके आम जनता को या गरीब जनता को कैसे बेवकूफ बनाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे तो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड इसी सिस्टम के से ही सबसे बड़ा फ्लॉ हो रहा है, जिसके से देश में एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है। बहुत सारे जो एलपीजी के सप्लायर है वो ओटीपी सिस्टम को बाईपास करते हुए डायरेक्ट डिलीवर पर क्लिक कर दे रहे हैं या डायरेक्ट अपने सिस्टम पर अपडेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति के पास ओटीपी आया है वो अपना ओटीपी शेयर भी नहीं कर पा रहा है और बाकी सारे सिस्टम्स डिलीवर हो पा रहे हैं। क्योंकि जो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो सिर्फ यूजर के लिए नहीं है, वो डिलीवरी पर्सन के लिए भी है और डिलीवरी पर्सन ने इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है। या फिर बहुत बार सिस्टम एरर होने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो किसी दूसरे को चले जाता है और किसी तीसरे का किसी चौथे को। इस तरह के बहुत बड़े फ्लॉ की वजह से सिलेंडर्स बराबर जगह पर डिलीवर ही नहीं हो पा रहे। ये इतने बड़े फ्लॉ को हमारे देश के जॉइंट सेक्रेटरी समझ ही नहीं पा रहे।
मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल भाषा को यूज़ करते हुए किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये हमारे सिविल सर्वेंट से, हमारे इतने बड़े लेवल पे बैठे सिविल सर्वेंट से किसी को समझना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो इस मुद्दे को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में संबोधन भी दिया था, जिसमें लोकसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो मिडल ईस्ट से लगभग हमने अभी तक 3 लाख इंडियंस को भारत वापस लाया, जिसमें से 1000 सिर्फ ईरान के लोग थे, ईरान से भारत आए हुए लोग थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हमने अपना ऑयल एनर्जी डिपेंडेंसी 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों पर किया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लियरेंस के लिए हम इंटरनेशनल अथॉरिटी से टच पर है, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे हमने 1.44 लाख करोड़ सेव किया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जस्टिफिकेशन था अब तक। लेकिन तो ओवरऑल सरकार का ये स्टैंड था और प्रधानमंत्री जी का ये जस्टिफिकेशन था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जस्टिफाई करना ही बराबर नहीं समझा, या जस्टिफाई करना ही मुनासिब नहीं समझा। सबसे पहली बात, इस देश के जो बहुत सारे पेट्रोल पंप है जिसे ऑपरेट करने वाली जो इंपॉर्टेंट PSUs है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, जो कि देश के 90% पेट्रोल पंप्स ऑपरेट करता है, और जिनमें रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम चलता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम क्या होता है कि जब जो ऑयल का जो डिलीवरी पर्सन है या ऑयल का जो डिलीवरी एजेंसी है, जब वो उस पेट्रोल पंप के ओनर को, जब वो पेट्रोल पंप के बिजनेस पर्सन को डिलीवर कर देती है, तो उस पेट्रोल को या उस ऑयल को क्रेडिट पर पहले खरीदा जा सकता था, यानी उस चीज़ का पेमेंट 3 या 5 दिन के बाद भी किया जा सकता था। लेकिन अब इन PSUs ने, इंडियन ऑयल ने या फिर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इन सब ने अपने पेट्रोल पंप पर ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। अब आपको पेमेंट करना है तो आपको इमीडिएट ऑन द स्पॉट डिलीवरी करना होगा, सेम डे पर करना होगा, जिसके से नुकसान क्या हुआ है कि पहले जो पेट्रोल पंप के ओनर्स थे वो क्रेडिट पर ले लेते थे, और क्रेडिट पर लेने की वजह से जो लोकल किसान थे या जो लोकल किसान थे जिन्हें अपने ट्रैक्टर्स पर ऑपरेट करने के लिए या जिन्हें बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की यूज़ होती थी, या जो लोकल ड्राइवर्स थे या जो लोकल मैकेनिक्स थे जिन्हें बल्क में पेट्रोलियम की ज़रूरत होती थी, वो भी इन पेट्रोलियम ओनर से क्रेडिट पर खरीद लेते थे। तो एक क्रेडिट का साइकिल चलते रहता था, जिसे रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब ये रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम खत्म हो गया है, तो इमीडिएट पेमेंट की वजह से जो छोटे किसान हैं या जो ड्राइवर्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने को दिख सकता है फ्यूचर में, जो कि क्रेडिट पर पेट्रोलियम खरीदते थे, जो क्रेडिट पर पेट्रोल डीजल खरीदते थे। तो ये चीज़ एड्रेस ही नहीं की गई थी प्रधानमंत्री जी के स्पीच में। फिर दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपने स्पीच में एड्रेस नहीं की थी, जो कि है कि यूएस बार बार हमारे ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है। यूएस ने हमें बार बार प्रेशराइज किया कि हम इस वॉर पर स्टांस लें, हम अपना स्टांस क्लियर करें। उस पर हमारी गवर्नमेंट अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रही है। यूएस की गवर्नमेंट ने हमें डेडलाइन दिया था कि इस क्राइसिस को देखते हुए हम 30 दिन के अंदर रशिया से सस्ता तेल खरीद सकते हैं। उस चीज़ का हमें परमिशन लेना पड़ रहा है। मतलब हम अपने देशवासियों के बेनिफिट के लिए किस देश से तेल खरीदेंगे, उसके लिए हमें यूएस से परमिशन लेना पड़ेगा कि 30 दिन के अंदर आप सस्ता तेल खरीद लो, जितना खरीद सकते हो, और अपनी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कर लो। इस चीज़ का जवाब हमारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिया। और जब से इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात की गई है, जब से यूएस की गवर्नमेंट India specific waiver and only allow to these Russian ships to offload the oil deliveries to Indian companies. And this rule applies only to the cargo that had already loaded before the deadline of 5th of March, and this would end, as per this notification, this would end at around 4th of April, so 12 OM. So एग्री की है कि हम हमसे ट्रेड डील करने को तैयार है, तब से हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, जबकि रशिया ही हमारा सबसे बड़ा रिलायबल पार्टनर था ये ऑयल के परचेजिंग में या डिफेंस सेक्टर के इंपोर्ट में। लेकिन यूएस के पहले ट्रेड डील के प्रेशर में, फिर रीसेंट प्रेशर में हमने 30 दिन का हमें टाइमलाइन दिया गया, जिस चीज़ का हमें अभी तक जिस चीज़ का हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
फिर उसके बाद अब बात करते हैं, पीएम की स्पीच में क्लियरली कहा गया था कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलियम में यूज होता है, उसकी वजह से हमारा पेट्रोलियम इंपोर्ट कम हो रहा है। लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग को जस्टिफाई करना कहाँ तक जस्टिफाइबल है, कहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ का भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फायदा होगा हमारे पेट्रोलियम सेक्टर को। फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि एलपीजी की शॉर्टेज के बारे में कहें तो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर जो मैंने कहा कि पेट्रोलियम सेक्टर है उस पर भी नुकसान होने वाला है रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम ख़त्म होने के बाद। फिर उसके बाद हम बात करें कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की इंपोर्ट कम हुआ है उसे जस्टिफाई नहीं किया गया मैथमेटिकली या लीगली अभी तक। फिर उसके बाद बात करें तो बार बार हमारी फॉरेन पॉलिसी इस युद्ध में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई स्ट्रॉन्ग बैकबोन नज़र नहीं आ रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रहा है इस युद्ध में। तो इसी चीज़ के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।